Good afternoon to all of you. I, Professor Bhavik Panchal, welcome you all. We are taking the session of subject management of cooperatives. The chapter is consumer cooperative and the topic is also consumer cooperative. And we'll start the topic where we left in earlier session. I am sharing a PPT with you. I request you all to mute your audio and stop your video so disturbance can be minimized. We have discussed this PPT, consumer cooperatives, and just recall the types of cooperative because it is an important topic. If we are talking about types of cooperative, there are two types of cooperative: credit cooperative and non-credit cooperative. Where there is a credit cooperative, again there are certain types. It comes to NABARD, state and district level. And non-credit cooperatives, there are consumer cooperatives and many more. Fine. There are certain types of consumer cooperatives also that we discussed earlier. Say, for example, housing cooperative is there, dairy cooperative is there, fisheries cooperative is there, fine. Handicrafts, handloom cooperatives are there, fine. So it is infinite. Any cooperative, it is related to not related to credit. It is called a non-credit cooperatives, and there are many among them are consumer cooperatives. We discussed this topic in earlier session as well. We are moving further. This is the introduction part of consumer cooperative. Definition already we have discussed. What is consumer cooperative? These are the various objectives of consumer cooperative that is we discussed in earlier session. Need and importance of consumer cooperatives. This is also discussed. Merits and demerits of consumer cooperative and we discussed in the last session. Composition of consumer cooperative we have discussed fine in the last session. Fine. NCCF, National Corporation Cooperative of Consumer Federation. What are the functions of NCCF? This is the topic we have discussed in the last session. Fine. We are discussing today the topic is SCCF. SCCF stands for State Cooperative Consumer Federation. Fine. It comes under the NCCF, National Cooperative Consumers Federation. NCCF is the upper body of SCCF state level. If you have studied three-tier structure of cooperative, fine. The same structure you will find. Fine. Then PAC, district, DCCF, SCCF, and NCCF. What are the function of SCCF? SCCF क्या काम करता है? So one by one we will talk about the function of SCCF. First of all, to establish and run manufacturing and processing units for production of consumer goods. रिस्पेक्टिव स्टेट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट है, स्टेट की बात किया गया है यहाँ पे, उसको चलाना, उसको रन करना, ऑपरेशनली उसके ऑपरेशन देखना, ठीक है, ये सभी कुछ SCCF करता है, ठीक है. दिस इज लिमिटेड टू स्टेट ओनली. फॉर एग्जांपल, अगर गुजरात स्टेट में कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव है जो प्रोडक्ट्स कोई बना रहा है, तो उसको चलाना, उसको नो हाउ करना, उसका A to Z फंक्शनलिटी देखना, ये किसका काम है? SCCF का, ठीक है. से फॉर एग्जांपल गुजरात में ऐसे काफ़ी सारे उद्योग हैं जो SCCF के नीचे आते हैं, जैसे कि पापड़ उद्योग है, ठीक है,
पापड़ उद्योग बहुत ही गुजरात में पुराना है। राइट नाउ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी used a very upgraded or advanced technology for such kind of handicrafts industry. देन अचार बनाने का उद्योग है। उसके बाद काफ़ी सारे अलग अलग गांव में अलग अलग, जैसे कि चिली पाउडर की बात करें हम, मिर्च, तो गांधीनगर के आसपास जितना भी रीजन है वो उसके लिए फेमस है। इधर वो चाहे सेरथा हो या और भी बहुत सारे ऐसे रीजन है, तो वहाँ पे ये जो है इंडस्ट्री चलती है। फाइन, तो उसको चलाने का प्रॉपर रन करने का जो मैनेजमेंट होता है ये कौन करता है? SCCF। फाइन, इट इज स्टेट वाइज, हर एक स्टेट में SCCF होता है और ये जो है इंडस्ट्री को रन करता है। फाइन, गुजरात में SCCF है, स्टेट कोऑपरेटिव है, एज यू ऑल नो दैट। उसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव भी आता है। इट इज़ अ डिफरेंट कोऑपरेटिव जो क्रेडिट कोऑपरेटिव को देखता है। नाबार्ड इज एपेक्स बॉडी ऑफ स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव। Right. So this is the first function, to run a manufacturing unit and to look after it. Fine. The second is to supervise the workers of wholesalers. Fine. यहाँ पे कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव होगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, तो स्टेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या करेगा कि वो होलसेलर के वर्कर्स को लुक आफ्टर करेगा। ठीक है, होलसेलर के वर्कर्स कौन हो सकते हैं? हु आर द वर्कर्स ऑफ होलसेलर? सो जो स्टेट कोऑपरेटिव से डायरेक्टली जो खरीदते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम लिज्जत पापड़ की बात करते हैं, तो लिज्जत पापड़ को बनाया जाता है, उसके बाद उसका मार्केटिंग किया जाता है। तो देयर आर सर्टेन होलसेलर्स जो लिज्जत पापड़ की एजेंसी रखते हैं। नाउ उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ये भी SCCF का काम है। उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना, ठीक है, कि भाई ये जो है एक्सेस कोई प्रोडक्ट नहीं रख रहे हैं ना, ये भी देखना किसका काम है? SCCF का। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अभी अभी का जो एरा है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज करते हैं कोई भी कमोडिटी का, जैसे कि खाने का तेल है। अब मान लो कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव खाने का तेल बना रही है, एडिबल ऑयल बना रही है, ठीक है, तो उनको देखना पड़ेगा कि कोई भी होलसेलर उनका जो प्रोडक्ट का स्टॉक ना करें। फाइन, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी अगर कोई स्टॉक करता है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या आएगा कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मार्केट में होगी। ठीक है, और अगर आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होती है तो उसका रिजल्ट क्या कहता है, क्या आता है? ओवरऑल प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी हाई, राइज होगा उसका प्राइस। ठीक है, जो अभी ऑब्वियसली हो रहा है। अगर आप जो सिंग तेल की बात करो उसमें भी काफ़ी कुछ जो है प्राइस राइज हो रहा है। देन अगर आप कॉटन सीड ऑयल की बात करो, कपासिया तेल, उसमें भी प्राइस राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके रिजल्ट है? ये सारे रिजल्ट है स्टॉकिंग। ठीक है, जो कोई संग्रहखोरी करता है उसको बोला जाएगा, तो इसके रिजल्ट है। अब यहाँ पे SCCF का रोल आता है कि ये उनको देखना है कि उनका जो कंज्यूमर गुड्स है उसका स्टॉक ना हो। फाइन, और अगर स्टॉक नहीं होता है तो मार्केट में जो है इक्वल प्रॉपर क्वांटिटी में सप्लाई जाएगा, और मार्केट का जो पोजीशन है, आप जो डिमांड और सप्लाई पड़े हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो मार्केट में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। इसका मतलब जितना डिमांड है उतना सप्लाई आ रहा है। फाइन, अगर कहीं पे भी अगर इसका बैलेंस बिगड़ा है इक्विलिब्रियम का, तो मार्केट में इधर शॉर्टेज होगा या सरप्लस होगा। ठीक है, तो शॉर्टेज होगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है लोगों को रहेगी, प्राइस हाई हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? SCCF। फाइन, स्टेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी है ये। उसके बाद टू होल्ड सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड टू कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे हमने आगे देखा था NCCF में। फाइन, सेम फंक्शन जो है यहाँ पे SCCF के है कि लोकल लेवल पे सेमिनार कंडक्ट करना। सेमिनार का मतलब
ऐसे गैदरिंग करना जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी रखना जिससे लोगों को पता चले कि ये क्या काम करता है, उनके राइट्स क्या है, कौन कौन सी नई प्रोडक्ट्स मार्केट में आती है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को इन्फॉर्म्ड करना। बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, फाइन, और इंडिया में मेजोरिटी कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है वो किसी को मालूम नहीं होता, फाइन। जब तक वो मीडिया में नहीं आता काफ़ी कुछ कम लोगों को मालूम पड़ता है। अब कोऑपरेटिव जनरली क्या होता है कि कोऑपरेटिव जो है अपना एडवर्टीजमेंट मीडिया में बहुत ही कम देता है। आपने ऐसी बहुत कम कोऑपरेटिव्स की एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया में देखे होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट अमूल का आता है, उसके बाद लिज्जत पापड़ का आता है। ये दोनों के अलावा बहुत कम कोऑपरेटिव्स है जो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो अपने कोऑपरेटिव मतलब मार्केटिंग या प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एससीसीएफ का काम क्या रहता है? एससीसीएफ का काम रहता है कि उन तक सारी जानकारी पहुँचाना, इंफॉर्मेशन पहुँचाना, उनको अवेयर करना, उनको ट्रेन करना। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, फाइन, विद अगर ज़रूरत पड़ी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट लेना। ये सारी बातें जो है ये फंक्शन में आती है एससीसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एनसीसीएफ और एससीसीएफ में सिर्फ जो है उनका रीजन ही, ठीक है, स्कोप ही अलग अलग है, बाकी काम दोनों का एक ही है। एनसीसीएफ का मतलब पूरे इंडिया में वो लुक आफ्टर करता है, और एससीसीएफ है वो एक स्टेट तक सीमित रहता है। फाइन, देन नेक्स्ट फंक्शन इज to make bulk purchase in the state and from outside the state and to help the affiliated society। अब एससीसीएफ क्या करता है कि उसके अफिलिएटेड जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर सोसाइटी, उनको हेल्प करना। कैसे हेल्प करना? तो बल्क में प्रोडक्शन मतलब बल्क में परचेज करना और उनको देना। ठीक है, किसको देना? उसके अफिलिएटेड मतलब उसके अंडर में जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको ये प्रोडक्ट परचेज करके देना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल ले कि मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो काजू आता है, काजू प्रोसेसिंग का काफ़ी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी काजू को प्रोसेस करती है। अब उस टाइम पे एससीसीएफ क्या कर सकता है कि रॉ काजू मतलब जो काजू का जो कच्चा सामान है, मतलब रॉ काजू जिसको बोला जाता है, विदाउट प्रोसेस वाला, तो जनरली वो उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक है, तो एससीसीएफ ये कर सकता है कि जो बल्क में परचेज कर सकता है वो अफ्रीकन कंट्रीज में से रॉ काजू, और ये जो रॉ काजू उन्होंने परचेज किए वो जो उसके अफिलिएटेड कोऑपरेटिव्स हैं उनको दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनको जो है अफोर्डेबल प्राइस पे रॉ मटेरियल मिलेगा। नाउ अभी वो लोग क्या कर पाएंगे कि वो अपने प्लांट में उसको प्रोसेस कर पाएंगे, और वो प्रोसेस करने के बाद वो जो है फिनिश गुड जो है बना पाएंगे। राइट, सो दैट इज वन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एससीसीएफ। तो जनरली एससीसीएफ बहुत सारी ऐसी काम करती है, जैसे कि राइट नाउ अभी हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, तो उस टाइम पे एससीसीएफ काफ़ी कुछ एक्टिव काम भी करती है। जैसे कि मान लो कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट प्रोडक्शन करते हैं, काफ़ी सारे कोऑपरेटिव्स, ठीक है, तो उनको भी हेल्प करना, उनको असिस्ट करना, ये भी काम कर रहा है। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं जो अपना कोर बिजनेस छोड़ के जो क्रूशियल काम है, एसेंशियल काम है, उसमें लग जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, जैसे हम एग्जांपल ले कि भाई ऐसे काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कोऑपरेटिव्स भी है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन राइट नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि मास्क प्रोड्यूस करना, जैसे कोई कोई एक कोई दवाई बनाना जिसकी इमरजेंसी में ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये सब जो है उनकी फंक्शन है कि भाई जैसे ज़रूरत है वैसे काम करना, फाइन, उनका जो चैनल है उसका प्रॉपरली यूज़ करना।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो है वो हर एक तालुका लेवल में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, जिसको गुजराती में संघ बोला जाता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ कोऑपरेटिव? तो वो जनरली जो किराना है, आइदर वो गेहूं हो या चावल हो, वो लोगों तक पहुंचाते हैं, वो कम दाम में, ईडिबल ऑयल मतलब खाने का ऑयल हो। फाइन। सो राइट नाउ दे आर डूइंग बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। अभी वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बाहर का काम कर रहे हैं, मतलब कि वो 24 आवर्स अपना जो है स्टोर खुला रखते हैं, या लोगों को जो जरूरत है वो उनके घर तक कोई पहुंचा रहे हैं। फाइन। सो नॉट ओनली सेल ऑफ सच काइंड ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बट व्हेन द नेसेसरी उनके लोगों के घर तक पहुंचाना, ये भी जो है उनका काम है। और ये काम को सुपरवाइज स्टेट लेवल पर सुपरवाइज कौन करता है? SCCF, फाइन, स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। और ये पूरे नेशनल लेवल पे NCCF उसको सुपरवाइज करता है। शॉर्ट नोट आता है कभी कभी एग्जाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NCCF और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SCCF। तब आप उसको इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद आपको फंक्शंस लिखने हैं, जो भी आपको पूछा जाए। ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज बल्क परचेज का हो गया, टू एक्सटेंड टेक्निकल गाइडेंस। ठीक है, उसके अफिलिएटेड जितने भी स्टोर है उस वहाँ पे टेक्निकल गाइडेंस उनको देना। ठीक है। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स टेक्निकली भी होती है, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले उनको टेक्निकल गाइडेंस भी देना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कस्टमर को सबसे ज़्यादा देनी है, उसका यूज़ कैसे करना है, ये सारे कुछ चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सैनिटाइजर बना रहा है। ठीक है। अब सैनिटाइजर का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैनिटाइजर? तो सैनिटाइजर जनरली जो, अगर आप उसका यूज़ करते हो तो जो बॉडी पार्ट्स है उसमें इन्फेक्शन, मतलब जो बैक्टीरिया है वहाँ पे बैक्टीरिया का नाश हो जाता है। ठीक है। जंतु मुक्त करने के लिए हम जनरली सैनिटाइज और से हैंड वॉश करते हैं। अब अगर आप सैनिटाइजर यूज़ करते हो तो उसमें क्या आता है, मेजोरिटी कंटेंट क्या होता है? तो उसमें मेजोरिटी कंटेंट होता है अल्कोहल। फाइन। अब अगर कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सैनिटाइजर बना रहा है तो उस टाइम पे उनको टेक्निकलिटी भी पता होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। फाइन। और वो प्रोडक्ट जिसको सेल कर रहे हैं, मतलब अफिलिएटेड स्टोर, जिसको आप होलसेल स्टोर बोलते हो या कोऑपरेटिव स्टोर बोलते हो, उनको बताना पड़ेगा ये टेक्निकलिटीज अबाउट द प्रोडक्ट कि भाई ये हैंड सैनिटाइजर हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन आप जो जो परचेज करता है उनको बताइए कि ये प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है। और दूसरा, आपने ऐसे काफ़ी सारे केसेस भी देखे होंगे, ठीक है, कि काफ़ी सारे लोगों ने हैंड सैनिटाइजर का यूज़ किया और तुरंत जो है वो खाना बनाने के लिए गए और जो है बर्न हो गया, मतलब उनका जो है हाथ जो है जल गए, बिकॉज what are the ingredients used in hand sanitizer? That is alcohol. 60-70% अल्कोहल होता है। तो अगर अल्कोहल बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, तो तुरंत जो है वो फायर को कैच कर लेगा। अब ये सारी टेक्निकल बातें जो है वो आपको वो स्टोर वाले को भी बतानी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ SCCF कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, टेक्निकलिटी है, वो उनको बताना पड़ेगा। फाइन। और उसके बाद ही वो एंड कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जो है जाना चाहिए। ठीक है। बट अगर पूरी इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं की वो लोग करते हैं तो क्या होगा कि उसके रिजल्ट्स जो है वो उससे उल्टे भी आ सकते हैं, जो हमने काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ों में देखा है। फाइन। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि काफ़ी कुछ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वो हेयर डाई भी बनाती है। फाइन। अब हेयर डाई, देयर आर प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, जैसे गार्नियर है, और भी बहुत सारे गोदरेज है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो हेयर डाई बनाती है। और काफ़ी सारे कोऑपरेटिव्स है, कई जगह पे हेयर डाई बनाती है। राइट नाउ काफ़ी कुछ जो कंपनीज है वो एडवर्टीजमेंट में ये कहती है कि देर इज़ ए नो एमोनिया फार्मूला। इसका मतलब कि वो उनकी प्रोडक्ट्स में एमोनिया नहीं है।
एंड जनरली एमोनिया जो इंग्रेडिएंट्स है वो बॉडी को हार्म करता है, स्किन इन्फेक्शन करता है। फाइन। अगर आपकी स्किन काफ़ी सारी सेंसिटिव है तो आपको एमोनिया जो है वो नुकसान कर सकता है। अब एससीसीएफ का काम क्या है कि उनको, उनके जो लोग हैं मतलब स्टोर वाले, ठीक है, जो जितने उसके एफिलिएटेड स्टोर है उनको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। फाइन। बट ज़्यादातर लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई इंस्टेंट हेयर कलर हो जाता है 5 मिनट में, ठीक है, उसमें नो एमोलिया है, नेचुरल है, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अगर 5 मिनट में कोई भी जो है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन या कोई भी कंपाउंड आपके बालों का कलर चेंज कर सकता है तो वो हाईली केमिकल युक्त हो सकता है, एंड दैट इज ए ट्रू। ठीक है, और उसमें विदाउट एमोनिया ये पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो उसमें अमोनिया होता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्निकलिटीज लोगों तक पहुंचाना ये भी इन लोगों की जिम्मेदारी है, एससीसीए। ओके, so we have discussed the two main parts, that is एनसीसीएफ एंड एससीसीएफ। अब एससीसीएफ के नीचे कौन आता है, तो देर आर डिफरेंट होलसेल स्टोर। ठीक है, होलसेल का मतलब बल्क, ऐसे स्टोर जो बल्क में जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को रखे, ठीक है, स्टोर कर पाए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ऐसे होलसेल स्टोर को मतलब रखती है। कभी कभी उसको गोडाउन भी नाम दिया जाता है, कभी वेयर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको शायद पता होगा कि हर एक स्टेट में स्टेट के गोडाउन्स होते हैं। फाइन, अभी राशन वितरण हुआ, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू होलसेल स्टोर, और अलग अलग स्टेट में वो होलसेल स्टोर को अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, गुजरात में हमारे उसको बोलते हैं पंडित दीनदयाल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ऐसा बोला जाता है। ये तो उससे क्या होगा, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके उसके सिवा भी अलग अलग बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव स्टोर है, होलसेल स्टोर, जिसको ऑथोराइज किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, तो दे आर ऑथोराइज एंड एबल टू सेल देयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एट देयर स्टोर्स। ठीक है, और उनकी भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है, काफ़ी कुछ फंक्शन उनको भी प्ले करना होता है होलसेल स्टोर को। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट्स है उसका ध्यान रखना, उसको प्रॉपरली स्टोर करना। फाइन, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करने की वजह से काफ़ी सारे जो है प्रोडक्ट्स बिगड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि खाने की चीज़ें है, खाने की गेहूं है। फाइन, मान लो अभी जो है सिचुएशन, मान लो कि कोई बारिश हो जाती है, तो अगर आपने खाने की जो अनाज है वो अगर आपने बाहर रखा है तो क्या होगा कि वो पूरा भीग जाएगा, वो फिर यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो ये सारी कुछ जिम्मेदारी किसकी है, होलसेल स्टोर की। उसको प्रॉपरली ठीक से तरह से संभाल के रखना, उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करना। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी बायसनेस हो जाती है, ठीक है, पार्शियलिटी होती है, तो ये जो होलसेल को, ये होलसेल स्टोर को ये सब ध्यान में रखना होता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूमर स्टोर वेयर एस्टेब्लिश्ड, मतलब गवर्नमेंट के कंज्यूमर स्टोर वहाँ पे होंगे वेयर देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5,000 पीपल प्रेजेंटली। मगर इसका मतलब 5,000 से ज़्यादा लोग जहाँ पे है वहाँ पे एक जो है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का होलसेल स्टोर होगा। ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट हैव सच स्टोर्स एंड द प्रोसेस इज सेटिस्फैक्टरी। ज़्यादातर ज़िले हैं यहाँ पे ऐसे स्टोर होते हैं, और उसका प्रोसेस जो है सेटिस्फैक्टरी होता है। देयर आर मोर देन 5,500 ब्रांचेस। उसकी 5,500 से ज़्यादा ब्रांचेस। अभी तो हर एक गांव में भी ऐसे स्टोर है, होलसेल स्टोर। ठीक है, जिसको आप कोई ऐसे कोई राशन या राशन केंद्र जिसको बोला जाता है, जहाँ पे केरोसिन मिलता है और भी बहुत सारी कॉमोडिटीज मिलती है, आपको शुगर मिलता है, खाने का तेल मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्टिवली ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में उन तक पहुंचता है। फाइन, और ये कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीसीएफ
के द्वारा ये लुक आफ्टर करता है। एनसीसीएफ है, उसकी नीचे की बॉडी है एससीसीएफ को देखता है, और एससीसीएफ ये सारे स्टोर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी का एरा में काफ़ी सारे दिनों से आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भाई जो ये लोगों को लोगों तक पहुंचाने का जो ज़रूरी सामान है, वो काफ़ी सारे स्टोर मालिक, जैसे जो स्टोर के मालिक है, वो डायरेक्टली उसको कहीं और बेच देते हैं। ऐसा सुना होगा शायद। मान लो कि गरीब किसानों को या गरीब लोगों के लिए जो अनाज आया है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, और जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है लोगों में, कि जिसको उसकी ज़रूरत है, वो डायरेक्टली कहीं और चला गया, ठीक है, किसी और को दे दिया गया। फाइन, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई, कोई माल प्रैक्टिसेस हुई, तो यहाँ पे उसको लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी है एससीसीएफ की। ठीक है, और अगर कहीं पे भी ये पकड़े जाते हैं तो उनको जो है एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें क्राइम उसके जो है उसमें लग सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रावधान है। ठीक। देन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, देर आर वेरियस डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मतलब हम क्या समझे? डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मतलब इट इज स्पेशली फॉर समथिंग। ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होगा। फाइन, जैसे मॉल की बात करते हैं तो मॉल इज वन ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, और हर एक चीज़ का, मान लो कपड़ों का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, खाने का डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट अलग है। सो अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, जो सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर जो है 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, और दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ था, उसका नाम पड़ा सुपर बाजार। उसके बाद अक्रॉस द इंडिया में 300 डिपार्टमेंटल स्टोर है। फाइन, और उसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग रखा गया है। फाइन, जैसे कि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में एक ये लाल दरवाजा एरिया है, वहाँ पे अपना बाजार करके एक बहुत बड़ा एक बाजार था, और वहाँ पे उसको डिपार्टमेंटल स्टोर गवर्नमेंट का बोला गया था। और भी बहुत सारे ऐसे बाजार होते हैं जिसको गवर्नमेंट अलग अलग नाम से रखती है नाम, और अल्टीमेटली वो लोग क्या करता है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कि आपको वहाँ से सारा सॉल्यूशन जो है वहाँ पे मिल जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ सुपर मॉल, जो मॉल एक प्रकार का मॉल टाइप होता है, बट इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट रेदर देन सम प्राइवेट एंटिटी और प्राइवेट बिजनेस हाउसेस। फाइन, इंडिया में जैसे बिग बाजार है, तो बिग बाजार एक सुपर मार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन इट इज रन बाय द फ्यूचर ग्रुप। ठीक है, जो फ्यूचर ग्रुप जो है वो रन करता है, वो ब्रांड फैक्ट्री वो भी फ्यूचर ग्रुप रन करता है। ठीक है, देर आर वेरियस डी मार्ट, वो भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर बोला जाएगा, लेकिन वो गवर्नमेंट रन नहीं करता है, तो वो कोऑपरेटिव स्टोर नहीं बोला जाएगा। फाइन, तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर जो कोऑपरेटिव मॉडल पे रन हो, और वो उसकी ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट। कई जगह पे गवर्नमेंट क्या करती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाती है। जैसे कि कोई गांव है तो गांव में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ के डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया जाता है। जो जीवन जरूरी सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, जैसे गेहूं है तो गेहूं लाना, देन शुगर एंड मैनी अदर थिंग्स, जो बेस्ट प्रोबेबल प्राइस में मिले। फाइन, वहाँ से बल्क में लाना, ठीक है, और उसको सेल करना। दैट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, जो हर एक गांव में होता भी है। बट जनरली जो मेन प्लेस होता है, जिसको तालुका मथक बोलता है, तालुका का मतलब कोई एक तहसील होती है उसका मेन सेंटर, या जिला मथक बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है उसका मेन सेंटर, यहाँ पे जनरली ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर आपको देखने को मिलेंगे। Fine. अहमदाबाद में अपना बाजार हमने एग्जांपल लिया, दिल्ली में सुपर सुपर बाजार है। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे इंडिया में ऐसे जो है स्टोर है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे खरीदने भी जाते हैं। और बेस्ट जो प्लस पॉइंट है ऐसे बाजार का, वो प्लस पॉइंट होता है कि प्राइस, उनके कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइस पे अगर वो प्रोडक्ट मिलता है,
तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मार्केट से उनको कम रेट मिलता है। फाइन, हमने बार बार एग्जांपल लिया था शुगर, ठीक है, कि शुगर का एग्जांपल लिया था कि शुगर जो है अगर आप ऐसे स्टोर में से खरीदते हो तो आपको 37 या 38 रुपीज़ में से शुगर मिलेगा 1 kg। अगर आप यही शुगर अगर आप ओपन मार्केट में से खरीदते हो तो आपको लूज शुगर मिलेगा 40 रुपीज़, 40 रुपीज़, 42 रुपीज़, 43 रुपीज़ पर केजी। अगर तुवेर दाल की बात करें तो तुवेर दाल अगर आप ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर जो गवर्नमेंट है आप वहाँ से खरीदोगे तो आपको 85 रुपीज़, 84 रुपीज़ के आसपास ये तूर दाल मिलेगी। बट अगर यही तुवेर दाल अगर आप कोई प्राइवेट शॉप से खरीदते हो, कोई किराना शॉप से खरीदते हो, तो ये तूर दाल मिलेगी आपको 95 रुपीज़, जो अभी का क्राइसिस का सिचुएशन है। इसके साथ साथ हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, कस्टमर का शोषण कैसे होता है, ये भी हम थोड़ा कंसर्न कर ले, बिकॉज कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो राइट नाउ देर आर सर्टेन पीपल्स जो है ये काला बाजारी करते हैं और पर केजी वो 10 से 15 रुपये अपना प्रॉफिट उसमें निकालते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स हमारा है। Fine. और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के द्वारा इतना ज़्यादा उनका रिचनेस नहीं होता, बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर पूरे कंट्री इंडिया की 137 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, तो सभी पॉपुलेशन तक डिपार्टमेंटल स्टोर पहुँचे ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को भी प्राइवेट जो शॉप ओनर है उन पे जो है रिलाई रहना होता है। तो दैट इज द थिंग कि लोग जो है उनके एक्सप्लोइटेशन का शिकार बनते हैं और गवर्नमेंट की लिमिटेड रिचनेस होती है। तो दैट इज वाई वन ऑफ द थिंग कि वो उनका उन तक पहुंच नहीं पाते। फाइन, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा अभी रनिंग टाइम शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ तक हमारा जो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ के जैसे मैंने कल भी बताया था कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, बिकॉज आपको उसके बाद आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप जो भी सब आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फैकल्टी है आप उससे बात कर सकते हो। फाइन, सो हम यहाँ पे हमारा सेशन जो है एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।